नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में पिरामिड वैली इंटरनेशनल में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के समय से ही हर वर्ष ये महोत्सव मनाया जाता है। देश विदेश से ध्यानी आकर यहाँ इस महोत्सव में भाग लेते हैं। प्रातःकालीन संगीत ध्यान, प्रकृति ध्यान, पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान करते हुए 3 दिन तक सभी लोग इसका लाभ लेते हैं। इस महोत्सव के अवसर पर प्रतिदिन ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के संदेश को प्रोजेक्टर पर दिखाया गया। तत्पश्चात श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी ने अपना संदेश दिया। वो संदेश तेलुगु में था, उसका हिंदी अनुवाद करके आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। इस संदेश को पिरामिड मास्टर भानु प्रसाद जी ने अनुवाद करने में सहयोग किया है। उनकी मैं हृदय से आभारी हूँ और श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी की अनुमति से उनके संदेश को वॉइस ओवर करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान का हम सबको लाभ मिले, उनकी ऊर्जा का हम सबको लाभ मिले और उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े, इसी का एक प्रयास किया गया है। आइए पत्री जी का संदेश सुनते हैं। There are 3 enlightenments. Remember these 3 always. The enlightenment, when you decide to become enlightenment, when you start thinking of enlightenment, that is enlightenment. Second is when you do get enlightenment. So many sadhus, sons, Bharata, Bhagavad Gita, Bible, everything says there is something else is there. So Jesus said, "My Father who art in heavens." And when we hear that word, okay, he realized something there, I should also realize something there. When you make that decision, your enlightenment began. So when Alexander saw that, after seeing Diogenes, his enlightenment began. So his enlightenment began, but he did not achieve enlightenment, the second enlightenment. The first enlightenment began, but before his second enlightenment came, he left his body. So, in Bhagavad Gita, a question is put by Arjuna to Krishna. Swami, somebody has begun enlightenment, then he has not become enlightened. Yoga brashta ho gaya hai. तो उसका क्या होगा? When he becomes a yoga brashta, yoga started, but yoga brashta, yoga has not been completed. Then Krishna simply said, "Oh, nothing happens. He comes back again. Either he is born into a rich person's family or a yogi's family, he will continue his enlightenment." So, the great thing about these 3 is to begin the quest for enlightenment. When Ramana Maharshi, at the age of 14, when he was studying the 7th class, 7th standard, he ran away from home. He didn't like his home. He said, "Something wrong all this place. I want to find out the truth." That is the beginning of enlightenment. The phase 1, he ran away, and landed in the Arunachalam, Tiruvannamalai. Then he stayed. He did not allow his mind to work. No need for the mind to work. Chumma iru. Yesterday we were Chumma iru, just stay. Then he became enlightened. So his stage 1 became when he ran away from his home. Then he became enlightened. Then whoever came to him, he started teaching. Find out what is enlightenment. Buddha Purnima, the full moon, there are 3 full moons. Again, you see, that's a classical thing. That's why Buddha is forever. He is born on a full moon, he became enlightened on a full moon, then he left his body on a full moon. 3. These 3 represent the 3 enlightenments. You see?
These three. Enlightenment, beginning of enlightenment, then realization of enlightenment, then expansion of your enlightenment, and service in your enlightenment. These three you see. These are the three full moons. श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश। सभी को बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक बधाई हो। इतने लोग यहाँ बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। हम सब मिलकर बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव एक मुख्य अंश है। पत्री जी के समय से ही हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता रहा, उसी तरह हम अब भी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इस कार्यक्रम में सभी राज्य से मास्टर आकर भाग लेते हैं। सभी मास्टर्स को यहाँ सामूहिक ध्यान करना है। पत्री जी ने बताया कि आत्मज्ञान ध्यान शुरू करते ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ जन्म लग सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ साल लग सकते हैं। समय नहीं बताया जा सकता कि आत्मज्ञान या ज्ञानोदय कब होगा। आज ही ध्यान शुरू किया, आज ही ज्ञान उदय हो जाएगा, आज ही आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमण महर्षि जी ने एकांत में बैठकर मैं कौन हूं अपने भीतर से इस प्रश्न को खोजने की शुरुआत की और इस प्रश्न के उत्तर को खोज लिया। जो भी उनके पास आता था वो उनसे पूछते थे कि आप कौन हैं? मैं फलां फलां का बेटा हूं, तो वो कहते थे नहीं, आप कौन हैं? बैठो, इस प्रश्न के उत्तर को जानो। ध्यान में बैठकर अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लो। जीवन में हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करने आए हैं, इसकी जानकारी कर लो। ध्यान करके हमें ये जानना है। पत्री जी ने बताया कि सांसों के साथ ध्यान करो, आनापानसति ध्यान करो। पत्री जी ने सरल भाषा में बताया है, हमें वही करना है। श्वास ही हमारा गुरु है। पत्री जी ने जो बताया है वही करना है। भागना छोड़कर बैठना सीखो। सबकी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें स्वयं जानना है। ध्यान करके स्वयं के बारे में स्वयं जानना है। Sadhana, sadhana, sadhana. That is very, very important. Very important. साधना 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 साधना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुस्तकें पढ़ो, उनको समझो, स्वाध्याय करो। पत्री जी ने सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है? ध्यान करने का तरीका बता दिया। ज्ञान के बारे में बताने के लिए बहुत सारे सीडी बना दिए। उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलकर, उन सिद्धांतों को फॉलो करके आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में यही है। पत्री जी के बारे में कोई आकर हमें बताता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। हम भी बता सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जहां सब लोग मिलकर साधना करते हैं, वहां बैठकर उनके साथ साधना करें। पत्री जी ने जो बताया है हमें वही करना है। साधना ही करनी है और कुछ नहीं करना है। अंदर की दुनिया को देखना सीखो। करेंगे ना आप सब? अनावश्यक बातें ना करें, ना अनावश्यक बातें सुने। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। मैं ऐसा समझती हूं कि सब लोग ध्यान करेंगे। ధ్యానం చేయండి. థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद, नमस्कार।